cold weather. That's why all of you are here in your Zoom class, but none of you and no student is here in the in-campus class. So anybody can send me a message if that person is able to hear me, or all of you students can hear me. Just send a text. Just send a message like if I'm audible to everyone. Oh, that's good. Nurulan, that's good. Asfan, that's good. Hassan Mirza, okay, that's good. I'm very thankful for your kind response. So before moving on, thank you, Dharam. Before moving on, thank you, Batul, for just Walaikum Assalam, Havish Shoaib. Yes, ma'am. Thank you so much for responding me. That's great. I'm very happy that you have joined this class and you can learn a lot and learn better things at this educational from the Zavia Educational Services, you can say. Before moving on, I just want to tell you a little bit introduction about myself, like what I'm doing and what I have completed in my studies. So this is Sidra Abbas, and I'm teaching here as a CSS coach, you can say, in this Zavia Academy in many sections. And you can say, recently I'm working as a research assistant with one of the projects that is with my professor who is living in a Boston University, USA. Besides this, I have completed my education master's and PhD in gender studies. So you can call me a gender specialist, you can say. So this is a short profile. Okay, because this is the gender studies and all of you are CSS aspirants. So before moving on, I just want to let you know, like, why anyone of you can unmute yourself and just give me an answer. Why have you chosen this subject, like this gender studies subject, to be a CSS aspirant? So any one of you can unmute yourself and just send, give response. कोई भी फ्रेंकली बता सकता है कि क्यों आपने CSS का सब्जेक्ट में जेंडर स्टडीज सब्जेक्ट क्यों चूज किया? आप कोई भी वॉलंटरीली अपने आप को अनम्यूट करके मुझे वॉइस पे बता सकता है। अच्छा, चलो तब तक देखते हैं कि खावर शोएब ने कहा है कि बिकॉज इट्स मार्क्स कोडिंग एंड हैविंग बैकग्राउंड इन सब्जेक्ट. Okay, you have a background of gender studies as well, and in CSS it gives you a good scoring as well, right? Nurulon कहती है teacher I got it may be easy and interesting. Yes, you can say it could be an easy subject as well and interesting as well, so that's a good point as well. But my point is why I'm asking you guys that being a CSS aspirants, why have you chosen this subject? Being a CSS aspirant, why you have chosen this subject? Peer Muhammad is saying it's easy and short subject. Okay, like all of you, is it only here a game of marks? ठीक है, या आसान है बहुत और नंबर अच्छे आ सकते हैं, या जो हमें इजी लगता है, उस वजह से जो है वो हमने इसको चूज किया. थैंक यू सो मच. ओके, देखो CSS सब्जेक्ट आपने चूज किया. Dharam is saying I have chosen gender studies because it's a scoring subject and it has a short outline. So okay, Daniel is saying because this subject is interesting and also multi-dimensional. Yes, Daniel, something like you have picked up my point, but I want to ask, like, this is multi-dimensional subject. Okay, let me make you something very simple and clear to you because you are a CSS aspirant. तो जेंडर स्टडीज का सब्जेक्ट चूज करने का मतलब ये है कि आफ्टर गेटिंग अ गुड पोजीशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर CSS, आप जाओगे पॉलिसी मेकर्स के पास. ठीक है, you are among the policy makers, you people are among the policy implementers, you people are among to guide others, like this
this policy should be meant in such a way. So these issues should be sorted in a mannerable way. Or you can be a representative of your own departments, representative of your country, and representative of your national policies in terms of economy, in terms of social, and in terms of political policies as well. So being a CSS aspirant, it's very important, like you should know, you have chosen the subject of gender studies, like you want to be among those people who are the community influencers and who could make certain change and could influence others to make the right decision at the right time. Okay, so this is very simple, like okay, अच्छा आप इसको देखें कि आपने सिर्फ मार्क्स तो लेने हैं और आपने अच्छा स्कोर करना है और सब्जेक्ट आपको इजी लगता है और सिर्फ ज्यादा थ्योरेटिकल ग्रेड है, तो हाँ आप इससे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और लेकिन आपको जब आपको अप टू द मार्क अपना पेपर उसको हल करना होता है, क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है विद अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, यस एट दैट पॉइंट यू नीड सम कोचिंग एज वेल। अदरवाइज सिर्फ सिंपल पढ़ना हो तो सिर्फ पास तक रहना हो तो इट्स इजी, you can do it by yourself. But when you want to be actually CSS aspirants and gender studies, especially to change the perception and policies in terms of economy, in terms of social, in terms of political, so you need the coaching as well. So this Zavia platform is providing you best coaching, you can say, like being a gender specialist, I can say like we will provide you the best educational services. अच्छा, Hassan कहते हैं कि have heard from seniors that it's an easy and scoring subject, but to be honest, never go through subject in my life. So it's all right if you haven't gone through this subject even for once in your life. So it doesn't matter. It's mainly it's up to you. Yes, it's up to us. It's up to us, the being a teacher. It's up to us as a academy, you can say. But your own contribution is very important if you want to have a very high scoring and up to the mark your own conception of about the gender studies as well. अच्छा, तो अब आगे देखते हैं कि आज का, क्योंकि आपका ये है ओरिएंटेशन सेशन, तो हम उस ओरिएंटेशन सेशन को 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे कि पहले हिस्से में हमने क्या पढ़ना है, फर्स्ट हिस्से में हम क्या डिस्कस, सेकंड हिस्से में हम क्या डिस्कस करेंगे और थर्ड पोर्शन होगा उसमें क्या डिस्कशन होगी। सो फ्रॉम माय साइड बीइंग योर टीचर ऑफ द जेंडर स्टडीज, आपको मैं बताऊं कि फर्स्ट पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या है और इस सब्जेक्ट का कोर्स कंटेंट क्या है, और इस सब्जेक्ट को सिर्फ हमने जनरल परसेप्शंस पे रख के नहीं समझना, बिकॉज इट्स अ साइंटिफिक एंड थ्योरेटिकल एकेडमिक सब्जेक्ट, तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना है। सेकेंड पार्ट ऑफ इन योर डिस्कशन क्लास और ओरिएंटेशन क्लास हम ये करेंगे कि उसको जो है हम देखेंगे, आपने अगर अपना CSS का जब फाइनल एग्जामिनेशन होगा आपने उसको जस्ट अटेम्प्ट करना है या आपने उसको टेक्निकली इस तरह अटेम्प्ट करना है, यू जस्ट नॉट got the pass marks, but you will be able to attempt all of the questions with totally up to the marks, ठीक है, और इतने up to the marks हो कि examiners will see your paper and say just wow, what a student and what are the good students, like they are coming in a CSS and just like they could be like writer, they could be shining star of the future, you can say. So all of you just you should know that कि आपने अपने पेपर को टेक्निकली तरीके से किस तरह हल करना है। और तीसरे पोर्शन में हम ये कर लेंगे कि कोई सा भी टॉपिक हो सकता है, उस टॉपिक को हम डिस्कस कर लेंगे कि अगर सपोज आप यहाँ पे पढ़ते हो तो व्हाट कुड बी दी लेक्चर मेथड क्या हो सकता है, कि उस लेक्चर में आपका कंटेंट क्या हो सकता है, या उससे रिलेवेंट रेफरेंसेस कैसे मिलेंगे आपको, या उससे रिलेवेंट रीडिंग्स जो होगी वो कैसे मिल सकती हैं, या वो किस तरह की होगी। ओके, सो इन फर्स्ट सेक्शन ये है कि हम देखा कि जेंडर स्टडीज इट्स नॉट ओनली अ जनरल सब्जेक्ट, इट्स अ साइंटिफिक, थ्योरेटिकल एंड एकेडमिक सब्जेक्ट, it's an interdisciplinary and it's a multidisciplinary subject as well.
इसको हम किस तरह इतनी देखो इतनी मल्टी डायमेंशनल, जैसे दानियाल ने कहा कि इट्स अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट, तो हम इसको मल्टी डायमेंशनल क्यों कहते हैं? मल्टी डायमेंशनल हम इसको इसलिए कहते हैं कि बिकॉज दिस सब्जेक्ट नॉट ओनली टॉक अबाउट द परसेप्शंस बट इट आल्सो talk about the policies and it also talk about the law, it's also talk about the education, क्योंकि उसका डिफरेंट तरह का कोर्स कंटेंट है। कोर्स कंटेंट क्या हो सकता है कि सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि जो है वो व्हाट इज जेंडर, ठीक है, व्हाट इज जेंडर स्टडीज, व्हाट इज वीमेन स्टडीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड वीमेन स्टडीज, and what are the social constructions of the gender, either it's a biological, either it's a social construction, क्योंकि biological differences अपनी जगह है और जो है कंस्ट्रक्टेड डिफरेंसेस अपनी जगह है। तो फिर जब कहते हैं कि these are okay, these are the social construction, then how will come to know that these are the social construction? तो मेनली जब भी सोशल कंस्ट्रक्शन होती है या आप जेंडर स्टडीज की बात करते हैं तो उसमें देयर आर 5 इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोसाइटी जिसकी बेसिस पे जो है वो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर होती है। उसमें इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हो सकते हैं? वन इज कम्युनिटी, फैमिली, रिलीजन, मीडिया and education. So these are the cores that makes the gender construction of identity of a person or social construction of a gender. और इसमें डिफरेंट तरह की थेरीज है, जैसे क्यूर थेरी है, फिर उसके बाद फेमिनिस्टिक थेरीज हैं, फिर आप कहें जी थेरी परफॉर्मेटिविटी है, पावर थेरी है, फुकॉल्डियन डिबेट है, फुकॉल्डियन फेमिनिस्टिक स्टांस है। तो ये सारी सोशल कंस्ट्रक्शन की डिबेट है। और अगर आप कहते हैं कि नो इट्स नॉट ओनली सोशल कंस्ट्रक्शन अबाउट द जेंडर बट एज वेल एज इट्स आल्सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द biological construction as well because that is being natural, yes this is biological construction of the gender। तो उसमें ये होगा कि उसमें डिफरेंट तरह की आप थीरीज पढ़ेंगे, जैसे कि है सबसे फर्स्ट थीरी आती है कि सिगमंड फ्रॉइड की थीरी है कि फिर कोग्निटिव डेवलपमेंट है, फिर इस तरह की जो है वो कोग्निशन ब्रॉट अप within the household or within the family, within the four walls, and there are different kind of gender stereotypes that based on the social construction of the gender and as well as there are the different biological concepts. So for me, gender is not only a social construction, and ये आपको भी याद रखना है, gender is not only social construction. Yes, it's about social construction, it's a science, it's an art, and it has a biological concept as well. That's why you can totally approach the concept of the gender studies, right? अच्छा, ये होगी सोशल कंस्ट्रक्शन की डिबेट। अब दूसरा कंटेंट जो है वो उसमें अगर आप इसको और एलेबोरेट करें और उसमें इसमें क्या हो सकता है कि जैसे हमने बात की कि डिफरेंट तरह की फेमिनिस्टिक मूवमेंट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट वेव आई, फिर सेकंड वेव आई, फिर थर्ड वेव है, फिर फोर्थ वेव है और फिफ्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द feministic movement as well. So there, okay, Zia is saying there is echo in your voice, that is not clear. Okay, let me check it out. Acha. Feministic theories, there are different type of feministic theories as well. Feministic movements different है, feministic theories different है। फेमिनिस्टिक मूवमेंट्स में आप कहेंगे फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म है, सेकंड वेव है, थर्ड वेव है, फोर्थ है, एंड नाउ दिस इज फिफ्थ वेव व्हिच इज गोइंग ऑन, a fourth wave gender and sexuality debate. This is the most latest one you can say. पहली थी कि राइट टू कास्ट वोट, फिर दूसरी आई थी सोशल एंड जेंडर इक्वलिटी, फिर थर्ड वेव वाज आल्सो एक्सटेंशन अबाउट दिस, फिर फोर्थ वेव में there are like it was about again the gender and sexuality debate. Now this is the era of the fifth wave of feminism you can say, और जिसमें आप ये कहते हैं कि अगर आप जेंडर स्टडीज पढ़ेंगे वो ना पढ़ेंगे कि हाउ टू बी अ मैन, हाउ टू बी अ वुमेन, बट यू विल आल्सो स्टडी व्हाट इज who are the transgenders, who are the unisex, and what is the debate about gender sexuality, homosexuality, and these kind of liberal theories as well. तो ये सारी फेमिनिस्टिक मूवमेंट्स हैं। और जब आप थेरीज किसी को थेरीज को आप लिंक करते हैं तो उसमें थेरीज आती हैं, जैसे कि पावर थेरी है, रेडिकल थेरी है, लिबरल थेरी है, मार्क्सिस्ट थेरी है, तो ये सारी थेरीज भी आप उसके साथ पढ़ेंगे।
So being students of CSS आपको जो है वो बहुत मुश्किल लगता है कि जब आप जाते हैं अपने एग्जाम्स में कि आपने क्वेश्चंस को थ्योरेटिकली, टेक्निकली और स्पेसिफिकली जब कोई क्वेश्चन आता है थ्योरी का, आपने उसको इंटीग्रेट कैसे करना है और आपने अपने पेपर को हल कैसे करना है. सो बीइंग CSS parents, I have came to know that you guys have such kind of issues. तो उस पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे कि अगर आपको थेरीज में इशू होता है तो उन थेरीज को हम जो है वो इतने अच्छे से फिर एग्जांपल्स के साथ पढ़ें कि आप उस थेरीज को इनकॉर्पोरेट कर सकें और आपको अगर वही थेरी का कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जांपल्स इन टर्म्स ऑफ सोशल इश्यूज विद इन योर ओन कॉन्टेक्स्ट एज वेल एज नॉट ऑन योर ओन कॉन्टेक्स्ट मीन इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्टेक्स्ट में. तो आपने मेनली यही करना होता है कि आपको जब भी कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में तो स्पेसिफिक अगर थेरीज के अकॉर्डिंग आता है तो ज्यादातर आपके सोशल कॉन्टेक्स्ट इश्यूज आते हैं, इंडिजिनस इश्यूज पे वो थेरीज को इंटीग्रेशन के लिए द क्वेश्चन वुड बी. सो वी विल डेफिनेटली डू दैट विद सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स कि आप जो है वो उन थेरीज को अच्छे से वो है उनको इंटीग्रेट कर लें एट द टाइम ऑफ द योर फाइनल एग्जामिनेशन. फिर आ गया कि अच्छा ये तो जेंडर स्टडीज है लेकिन स्पेसिफिकली इट फोकस ऑन ओनली द विमेन स्टडीज. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. Yes, when you say things are going, there are certain social issues which are going on only in your own social context. हाँ, तो उस सोशल कॉन्टेक्स्ट में अगर ज्यादा इश्यूज औरतों के सामने आ रहे हैं तो आपने उसको औरतों के इश्यूज पे ज्यादा बात करनी है. बट इट्स नॉट ओनली अ विमेन स्टडीज. We will study also what are the difference between the gender and women studies as well, and what are the men's studies as well, because there are different groups in the at international level. जैसे कि यूके में है मेंस ग्रुप है, इस तरह के डिफरेंट उनके ग्रुप्स हैं जो कि जो है वो दे आल्सो टॉक अबाउट देयर ओन इश्यूज एज वेल. तो हम इन जेंडर स्टडीज में वुमेन स्टडीज, जेंडर स्टडीज, मेन स्टडीज, ट्रांसजेंडर इश्यूज, यूनिसेक्स इश्यूज, तो ये सारी डिबेट इसमें होगी, ना कि ओनली सिर्फ स्टेटस ऑफ वुमेन. हाँ, अगर सिर्फ स्टेटस ऑफ वुमेन है तो आपने ये देखना होगा कि एजुकेशन सेक्टर में कितने लड़कियां हैं, कितने परसेंट लड़के हैं, कोटा सिस्टम क्या है, या फिर उसके बाद जो है हेल्थ स्टेटस ऑफ वुमेन रिगार्डिंग मैटरनल एंड हेल्थ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, व्हाट इज द डिलीवरी सिस्टम, एंड उसके बाद जो है वो फैमिली प्लानिंग क्या है, फैमिली प्लानिंग मेथड्स क्या है, व्हाट इज द पॉपुलेशन रेट क्या है, जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, what is empowerment, what is the women empowerment, what is the gender mainstreaming, what is gender and development. So all of these issues we will discuss और ये topic wise होंगी. अच्छा, इसी तरह ये सारा कोर्स जो है वो विद इन अ मंथ दिस इंस्टीट्यूट इज ऑफरिंग दिस कोर्स फॉर 1 मंथ. और उस कोर्स में ये होगा कि आपके लेक्चर्स होंगे 5 डेज ऑलमोस्ट, और एक जो है वो टेस्ट सेशन होगा. जो है वो कोई सभी टेस्ट हो सकता है, यानी कि जितना भी आपने पिछले वीक में पढ़ा है उसको हम एक छोटी सी प्रैक्टिस टेस्ट के तौर पे एक्सरसाइज किया करेंगे कि एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, उसमें एमसीक्यूज होंगे, एससीक्यूज होंगे, और वो आपको जैसे आप टेस्ट अपना अटेम्प्ट करोगे उस तरह आपको वो अटेम्प्ट करके भेजना होगा, ताकि वी विल evaluate you at the same time कि आपने कितना लर्न किया है या आपको उसको कितना और ज़्यादा जो है वो रीडिंग मटेरियल चाहिए होगा, या कोई से भी उसकी रीडिंग चाहिए, या लेक्चर कौन सा रह गया है, या किस पॉइंट पे ज़्यादा लोग वीक कर रहे हैं, तो हम उसको जो है वो उस पॉइंट को अनम्यूट करेंगे. तो एक प्रैक्टिस टेस्ट होगा एवरी वीक, राइट. अच्छा, अगर डिफरेंट इसी तरह फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक, तो इस वीक में डिफरेंट जैसे मैंने कंटेंट बताया है कि आप उसी तरह कंटेंट के हिसाब से हम पढ़ते जाएंगे. और जो लास्ट वाले वीक होगा उसमें जो है वो डिफरेंट जो केस स्टडीज मेनली आती हैं सीएस के उसमें टेस्ट में, के केस ऑफ मलाला यूसुफजई, केस ऑफ मुख्तार अमाई, और जो थर्ड वन है वो केस ऑफ द शमीन ओबैजुना, कि उनकी लाइफ स्टोरीज क्या थी और उन्होंने किस व्हाई दे आर सो बीइंग highlighted or in the limelight into the social media, into the international media as well. तो वो क्यों इतने ज़्यादा है, या उन्होंने किन किन राइट्स पे बात की, what are their different books you can say that are being very much popular, and what are the different documentaries that are very popular and being in the limelight of the social media and international media as well. तो ये लास्ट वन में, ये थर्ड जो फोर्थ वीक है उसमें ये केस स्टडीज होगी. और जब आपका सारा कोर्स खत्म हो जाएगा
उसमें आप क्या करेंगे कि प्रैक्टिस टेस्ट तो आप हर वीक में देते जाएंगे, लेकिन जब लास्ट होगा और सारा सेशन खत्म हो जाएगा और लास्ट में आपका एक फाइनल टेस्ट होगा, ताकि उस फाइनल टेस्ट में आपको जो है वो पता चल सके, आप खुद को भी एवेलुएट करें कि हमने पूरे सेशन में कितना लर्न किया है या हमें और कितनी ज़रूरत है कि इसको और अगर हम आपके पास टाइम हो अपने टेस्ट के फाइनल अपीयरेंस के लिए, तो आप उसको जो है वो किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। तो अगर आप साथ साथ कोई क्वेश्चन भी पूछना चाहें तो आप साथ साथ इनबॉक्स करते जाओ, मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करती जाती हूँ, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। अभी जो मैंने आपको कोर्स कंटेंट की डिटेल बताई है, लाइक वी ऑलरेडी हैव बीन organized this course for 1 month, and for the every week we have already segregate all of the different topics according to the week, और टेस्ट सेशन भी हुआ ये होगा। और उसके लिए अगर आपको और एक जो है वो इजी बात ये है कि आपको अगर ये फर्स्ट कोर्स आउटलाइन मिलती है और अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, जैसे बहुत सारे एक दो स्टूडेंट्स ने कहा कि दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्टडी दिस सब्जेक्ट, तो उसमें मैंने कुछ ऐसे किया है, कुछ इंटरनेशनल लिंक्स को जो मेरी यूनिवर्सिटी के जहाँ मैंने पढ़ा था कि मैंने यही कोर्स कंटेंट पढ़ा, यहाँ से अगर मुझे टॉपिक समझ नहीं आया थ्योरेटिकली तो मैंने उसको यूट्यूब से लिंक किया, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो है इंटरनेशनल रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं उनके आपके कोर्स कंटेंट के साथ यूट्यूब के लिंक्स भी दिए हुए हैं, ताकि आप लोगों को उसकी समझ आ सके। जैसे शायद आप लोगों को नजर आओ, ये दीज आर द यूट्यूब लिंक्स ऑफ डिफरेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज जो कि हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं, ताकि आपको अगर थ्योरेटिकली कोई ना कोई चीज समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी, तो आप उसको जो है एक दफा उससे गो थ्रू कर सकते हैं। Okay, this was the first session of this discussion, और अगर कोई क्वेश्चन इसमें पूछना हो तो आप अभी पूछें, फिर हम कहते हैं कि हम सेकंड जो पोर्शन ऑफ दिस ओरिएंटेशन प्रोग्राम है वो मैं उसको आपको एलेबोरेट करती हूँ, और वो ये होगा कि आपने उसमें अपना टेक्निकली जो पेपर अगर आपका फाइनल पेपर हो रहा है तो आपने उसको किस तरह से करना है, या नॉट ओनली द फाइनल पेपर, और जैसे आप प्रैक्टिस टेस्ट आपने प्रैक्टिस में कंटिन्यूसली 4 वीक्स में देने हैं, तो वो आप किस तरह उनको जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम टिल द टाइम यू कैन आस्क, आप जो है वो लिख के भेजो उस क्वेश्चन को। So no question from the class. Okay, Peer Mohammed is saying kindly suggest the gender studies books. Of course, when you will be in the class, I will definitely give you the readings. Books, there are so many books that are available in the market. ठीक है, लोकल आपको बहुत मिलेंगी और शायद इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में यूं इतनी बल्क में ना मिले, क्योंकि जो है वो लोकली लोग ये समझते हैं, देखो यही बात है कि आप कहते हो कि हमने सिर्फ पास होना है, या स्टूडेंट्स कहते हैं कि आसान सब्जेक्ट है हमें सिर्फ पास होना है तो ठीक है, लेकिन जब तक आप अपने एक क्वेश्चन को विद द रेलिवेंट एंड मोस्ट रीसेंट कंटेंट के साथ लिखेंगे नहीं ना, so then you will not be able to gain the maximum marks. So this academy has a vision like to provide you the best services with the relevant literature, with the most relevant research literature, and with the different books of local and international authors as well. So you can get the readings with relevant to your daily topic, and you will be able to read to go through those readings, and ultimately you will be able to attempt your question in the right way. मैं यूं randomly किसी भी बुक किसी भी लोकल ऑथर भी बता दूंगा आपको, वो ठीक है आप पढ़ लेंगे, that's so easy, but when you say like this is scientific subject, so this is academic subject, तो फिर आप अपना पेपर उस तरह नहीं हल कर सकते, ठीक है। तो अगर आप लोकल ऑथर की कोई सी भी बुक पढ़ना चाहें आप उसको पढ़ें, तो फिर आप पेपर फ्रॉम बीइंग अ टीचर, like I can somehow say that you will be able to write the question with the general perceptions, so these general perception will not give you the up to the mark, और आपके सिर्फ वो जो है वो सिर्फ पास क्या 50 नंबर आ जाएंगे,
ठीक है, बट वी आर हियर टू गाइड यू ऑन डेली बेसिस विद योर टॉपिक्स एज वेल, कि अच्छा आपको जो है वो इसके साथ ये रीडिंग पढ़नी है, इसके साथ ये वाली आज की रीडिंग है, ये बुक है, तो आप उसके साथ पढ़ें, तो फिर आप जो है वो उसको टेक्निकली क्वेश्चन को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। ओके, इन द सेकंड पोर्शन आप कह सकते हैं कि सेकंड पोर्शन में हमने ये डिस्कस करना था कि हाउ यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द फाइनल पेपर इन अ वेरी राइट वे, कि अगर आपने अपना एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन है कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करोगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसके लिए थॉरोली जो डेली रीडिंग होगी उनको गो थ्रू करना होगा, ठीक है, दैट फर्स्ट वन इज दिस। और उसके साथ आपने जब अपना पेपर अटेम्प्ट करना है और जो है आपने उसको जो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने हैं और आपने उसको लॉजिकली लर्न करना है उन चीज़ों को। तो देर आर डिफरेंट मेथड्स जिसमें आप पेपर जो है अपना क्वेश्चन एक अटेम्प्ट करते हैं। लोग क्या कहते हैं कि अच्छा जी ये एक क्वेश्चन है, उसको हम 4 पोर्शन में डिवाइड करते हैं कि इंट्रोडक्शन हो गया, फिर बॉडी ऑफ नॉलेज हो गया, फिर जो थर्ड पे कंक्लूजन हो गया, ठीक है, लास्ट पे कोई क्रिटिक देनी है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो होगा। नो, बट इट्स नॉट लाइक दैट, यू विल नॉट बी एबल टू एड्रेस ऑल ऑफ द इश्यूज दैट आर बीइंग हाईलाइटेड इन द क्वेश्चन, कि आपका रीडर या आपका एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है। अगर उसने एक सवाल दिया है और उसके 4 हिस्से उसने बनाए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है आपने उसको 4 हिस्सों में ही करना है, और उसके 4 हिस्सों में डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। अच्छा, और जब भी आपने क्वेश्चन करना है तो आपने सबसे पहले स्टार्ट में किस तरह करना है, एक प्रियम्बल मीन होता है ना कि एक शॉर्ट सा आप अकॉर्डिंग टू द योर क्वेश्चन आप उसको 3-4 लाइनों में डिस्क्राइब करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है या स्टार्ट कहाँ से होना है। फिर सेकंड आप क्या करोगे, आप उसकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाएंगे। जब आपने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बना ली तो थर्ड वन क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है कि थर्ड वन में उन्हीं हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की आपने कंसेप्चुअल डायग्राम जो है वो बनानी है, ठीक है। फर्स्ट वन पे आपने उसको प्रीएम्बल दिया, सेकंड में आपने क्वेश्चन की हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाई, थर्ड में जाके आपने कंसेप्चुअल डायग्राम बनाई, फोर्थ में जाके आप क्या करेंगे, अगर उससे रेलिवेंट कोई स्टैटिस्टिकल डाटा इज बीइंग रिक्वायर्ड तो आप उसको स्टैटिस्टिकल डाटा को इनकॉर्पोरेट करें। और लास्ट वन में आपने इस तरह क्वेश्चन करें कि अच्छा मैंने कंक्लूजन की 2-3 लाइंस लिखी और जो है एंड पे अगर सपोज कोई भी थ्योरी जैसे लिबरल थ्योरी है तो आप उसके ड्रॉबैक्स एट द एंड लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिटिक्स। तो इस तरह ऑलमोस्ट 5 to 6 portions of a one question, and but it only depends on your question, what is being asked by the reader and what is being asked by the examiner। तो आपने उसको उस तरह से अटेम्प्ट करना है। लेकिन 4-5 चीजें हैं कि शुरू में आपने किस तरह उसको अटेम्प्ट करना है। प्रीएम्बल अच्छा किस तरह लिखोगे, प्रीएम्बल में आपने इस तरह लिखना है कि लोकल कॉन्टेक्स्ट से इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में, कि लोकल कॉन्टेक्स्ट में अगर सोशल इशू है तो उसको हमने 2-3 लाइंस में किस तरह डिस्क्राइब करना है। सपोज अगर कह रहे हो कि लिबरल फेमिनिज्म है तो यू कैन से द लिबरल फेमिनिज्म मीन आप यहीं से औरत मार्च की डिबेट स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें, ओके द इश्यूज of women not only relate to the social context or local context, but there are certain issues that are also related to the and that are happening or existing in the international context as well, राइट। तो ये प्रीएम्बल हुआ नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में। फिर आपने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाई, थर्ड वन में आपने कॉन्सेप्चुअल डायग्राम बनाई, फोर्थ वन में आप कहेंगे कि उसको आपने जो है वो स्टैटिस्टिकल डाटा उसको इनकॉर्पोरेट किया, और लास्ट में आपने उसको फिफ्थ पे जाके आपको कंक्लूड करें, और एट द एंड इफ इट्स रिक्वायर अ क्रिटिक देन यू शुड मेंशन द क्रिटिक एज वेल। और ये इसी तरह एक क्वेश्चन को चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, ये जनरल फॉर्मेट है कि आपने हर क्वेश्चन को इस तरह अटेम्प्ट करना है। तो उसमें आपने नेशनल इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट की बात करनी है, आपने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनानी है, फिर आपने कंसेप्चुअल डायग्राम जरूर बनानी है, और उसके बाद आपने उसको स्टैटिस्टिकल डाटा ऐड करना है, फिर आप जो है कंक्लूड करोगे एट द एंड, देन आप ये करेंगे आप उसकी क्रिटिक्स मेंशन करेंगे। सो दिस इज द योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू कि आपने ये हर क्वेश्चन को जो है वो इस तरह अटेम्प्ट करना है।
or don't just like think like whatever you are saying, whatever you are writing in your while attempting your question, this is like 110% is good. जब तक आप अपना कंटेंट जो है वो वैल्यूएबल कंटेंट नहीं ऐड करेंगे अपने क्वेश्चन में, तो आप जो है वो उसको जो है वो नहीं जो है वो अपने क्वेश्चन को फुली अटेम्प्ट कर सकते। Mr. Criminologist is asking, ma'am, can questions related to gender and crime come an exam of gender studies? Yes. अच्छा देखो बिल्कुल ये this is the very good, like you are like trying to understand what we are going to study. आप जब भी बात करेंगे जेंडर स्टडीज की, तो आप जेंडर बेस्ड वायलेंस यू आर गोइंग टू बी स्टडी। तो जब जेंडर बेस्ड वायलेंस है तो उसमें बहुत सारे क्राइम्स आ सकते हैं, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा डिबेट है डोमेस्टिक वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस बिल की, तो आप बिल्कुल जो है वो क्राइम रिलेटेड, फिर उसके बाद एक तो डोमेस्टिक वायलेंस आ गया, हैरेसमेंट आ गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट आ गया, वर्क प्लेस हैरेसमेंट है, यस दीज आर द क्राइम्स जो कि वो बिल्कुल आप इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आपको आ सकते हैं। जेंडर स्टडीज के लिए कोई बुक्स रिकमेंडेड बुक्स बता दें, एंड केस स्टडीज में कौन सी आती हैं, मलाला यूसुफजई एंड शर्मीन उबैद चनाय। अच्छा यूसुफ, आप ये है कि मैंने ये कहा कि आपके पास लोकल कॉन्टेक्स्ट में जो भी अवेलेबल बुक्स हैं जो है वो आप उसको कहीं से भी आपको मिल सकती हैं, बट राइट नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू दैट when you will take your class, I will give you definitely readings, and readings will not only belongs to one book, right? And this is gonna be because जब आप एक देखो, जैसे अभी इन्होंने क्वेश्चन किया है कि क्राइम और जेंडर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकता है, तो उसमें ये नहीं हो सकता कि सिर्फ एक बुक में सब कुछ लिखा हो। और जब हमने ये डिस्कस किया कि हम अपना क्वेश्चन जो है उसको अटेम्प्ट करेंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आपने उसमें सब हेडिंग्स भी देनी है, आप उसमें कंसेप्चुअल डायग्राम भी देनी है, फिर आपने उसमें जो स्टैटिस्टिकल डाटा ऐड करना है, फिर आपने उसमें क्रिटिक ऐड करनी है। सो देन हाउ कैन वी से दैट देयर इज ओनली वन बुक? देयर आर डिफरेंट रेफरेंसेस and those reference belongs to one book, though that reference belongs to another book, that reference belongs to some article, that reference belongs to any document, any legal document of your context as well. तो मेनली जो भी क्वेश्चन आता है वो आता तो लोकल कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन आप उसको ये नहीं कर सकते, आप उसको जो है वो डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ लिखो, क्योंकि जब भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, दिस इज गोना बी योर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, कि आपने उसको नेशनल इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में लिखा, फिर आपने कंसेप्चुअल डायग्राम भी लिखी, फिर आप जब स्टैटिस्टिकल डाटा ऐड कर रहे हैं तो फिर आपने फिर नेशनल इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट को कंपैरिजन में लिखना है, ठीक है? सो देन हाउ कैन आई से यू दैट दिस इज द ओनली वन बुक? देयर आर सेवरल बुक्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, राइट? ओके, तो जो है ये इस तरह से वो हो सकता है। आप इसको जो है वो इस तरह से पोर्शन जो है दिस इज गोइंग टू बी एंड। और कोई रिलेटेड टू योर क्वेश्चन फाइनल एग्जाम्स के अकॉर्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। एक वी कैन डू एन एक्सरसाइज एज वेल। अच्छा, एक अगर मैं कोई क्वेश्चन आता है, अच्छा ये मैंने पेपर जो है वो 2020 का जो है पेपर CSS स्टूडेंट्स का, उसमें से एक क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ कि आपने उसको करना किस तरह। अच्छा ये है, डिस्क्राइब ब्रीफली द हिस्टोरिकल एंड प्रेजेंट फेमिनिस्टिक मूवमेंट्स इन पाकिस्तान, राइट डाउन द नेम and purpose of Sharmeen Ubaid Chunay's documentary। ठीक है, तो ये दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू हैव 4 कॉन्सेप्ट्स कि सबसे पहले देखो इसने क्या है, हिस्टोरिकल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है और फिर प्रेजेंट फेमिनिस्टिक मूवमेंट्स क्या है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन योर लोकल कॉन्टेक्स्ट, आप हिस्टोरिकली क्या लिखेंगे? अच्छा हिस्टोरिकली आपने बहुत सारी, आपको पता है कि मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म थी, फिर जी उसके बाद सोशलिस्ट फेमिनिज्म आए, फिर लिबरल थ्योरी आई, फिर रेडिकल थ्योरी आई, ठीक है? तो आपने इसको हिस्टोरिकली एक जनरल कॉन्सेप्ट दिया। फिर प्रेजेंट फेमिनिस्टिक मूवमेंट इन पाकिस्तान। सो प्रेजेंट फेमिनिस्टिक मूवमेंट्स कौन सी हैं? अभी जो वो हुई थी विमेंस डे पे औरत मार्च, हमने औरत मार्च के अकॉर्डिंग उस कॉन्टेक्स्ट में लिखना है कि उसमें what are the different concept that was being raised into the औरत मार्च।
मतलब उसमें ये नहीं था कि दिस इज ओनली वन डायमेंशनल और one concept that is being highlighted. That was that Aurat March was being highlighted many जो है वो issue, जिसमें education, right to awareness, right to education, right to divorce, right to property, zero tolerance for gender based violence and zero tolerance and no domestic violence. तो इस तरह से ये सारी चीजें आपने लिखनी है, और फिर आप कहेंगे कि अगर औरत मार्च कॉन्टेक्चुअली उसको हाईलाइट इसने बहुत सारे इश्यूज ने किया, और फिर आप कहोगे उसमें बहुत सारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अपना रोल प्ले किया। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट तरह की हैं कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी थी, जिसमें दस्तक हो सकती है, जिसमें PCSW है जो कि गवर्नमेंट का इदारा है, फिर उसके बाद जेंडर मेनस्ट्रीमिंग डिपार्टमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वुमेन एंड डेवलपमेंट विंग है। फिर ये इस तरह से आपने उसको लिखना है, और फिर आप उसमें जब आप कहो कि अल्टीमेटली यस वी हैव हाईलाइटेड ऑल ऑफ दीज कंसर्न्स, और एट द एंड आप क्रिटिक भी लिख सकते हैं। अगर सपोज आप कहेंगे लिबरल थ्योरी को आप क्रिटिक लिखेंगे और मार्च के रिलेवेंट, तो आप उसको किस तरह लिखेंगे? आप उसको इस तरह लिखेंगे कि अच्छा, लिबरल थ्योरी हैज गिव अ राइट and concept of individuality and the right of the enlightenment as well, and give the right to education, but at the same time this liberal theory was a downfall for the traditional model that is being continuously going on within the local culture, and it has disregarded the traditional concepts of the society, and it has disregarded the certain लोकल पॉलिसीज एज वेल। तो आपने उसको इस तरह से क्रिटिक जो लिखना है, फिर आप उसको ये क्रिटिक ये भी हो सकती है कि दिस थ्योरी हैज आल्सो गिव मेनली द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी बट नॉट द mainstreaming, you can say, on the genders, and it has also criticized the patriarchal culture within the society. So like this you need to attempt this question in a such a way. अच्छा, इसका अगला क्वेश्चन ये है कि राइट डाउन द नेम एंड पर्पस ऑफ शर्मीन ओबैद चुनाइज डॉक्यूमेंट्री। तो इसमें आप जब आप केस स्टडी ऑफ शर्मीन ओबैद चुनाइज पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे इसकी जो लाइफ स्टोरी है वो किस तरह है, और फिर इसने जो है बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, बहुत सारी बुक्स लिखी, और द मेनली डॉक्यूमेंट्री वाज बीइंग हाईलाइटेड इनटू द इंटरनेशनल मीडिया, दैट वाज द कि उसको आपने एसिड अटैक विक्टिम्स पे उसने जब इसको उस डॉक्यूमेंट्री में हाईलाइट किया, अ गर्ल इन द रिवर, सो दीज काइंड ऑफ बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज दैट गेन द मोर इंटरनेशनल limelight and that has been highlighted in the international media। तो आप उसको जो है वो इस तरह से इसको लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। So this was the second portion in the class, or any question related to this particularly this section के आपने अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है तो वो आप बता सकते हैं। अच्छा, Sadakat is saying although this subject name is gender studies but most of the content is related to women's studies. Sadakat, there is a difference in gender studies and the women's studies as well, right? पहले जो है वो women's studies mainly इसका जो टाइटल था वो women's studies था, but later on it was being given another title that is gender studies. So हाँ, आप इसको this is a general perception you can say कि women's studies है सिर्फ, और gender studies में gender both of the genders you are not going to have a discussion, or you are not going to talk about the genders as well. We are going to talk about the gender. We are going to talk about men, women, transgender, and unisex as well, right? This is not only the women's studies. This is gender studies. और secondly ये है कि अगर आप कहते हैं कि अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में आप देखो व्हाट आर द इश्यूज दैट आर मेनली व्हिच इश्यूज मेनली बिलोंग टू व्हिच कैटेगरी ऑफ द जेंडर, दैट बिलोंग्स टू मेनली द विमेन। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा इश्यूज को विमेन ओरिएंटेड लोग इसको समझते हैं कि ये दिस इज ओनली द विमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम, दिस इज जेंडर ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो दिस इज नॉट ओनली अबाउट द जनरल परसेप्शन, जेंडर स्टडीज इन एकेडमिक सब्जेक्ट, दिस doesn't only based on the perceptions.
Okay, Wasim is asking how much the length of the answer of questions means के case study और feminism का topic का answer कितने pages का होना चाहिए। अच्छा, अगर 20 नंबर का सवाल होता है तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि आपने 5-6 पेजेस से कम नहीं लिख सकते, ठीक है, पहली बात। और लेकिन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर क्वेश्चन कि आपने उस क्वेश्चन को समझा है, उस क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं, और फिर आपने हमने जो एक जनरल क्राइटेरिया डिस्कस किया है उस पे आप अपने क्वेश्चन को किस तरह फ्रेमवर्क करते हैं। कि फ्रेमवर्क में जैसे भी हमने कहा कि आपने प्रीएम्बल दिया, फिर आपने उसको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाए, फिर कंसेप्चुअल डायग्राम बनाई, फिर स्टैटिस्टिकल डाटा क्या कंक्लूड किया और आइडेंटिटी लिखी। तो दिस इज द लाइक दैट। और 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप चार या 5 पेज लिखते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 6-7 पेजेस तो आप लिखें। लेकिन बट इट मेनली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन and the content that you have written down in your final question, you can say, right? Okay. So any more question from this section? No. Okay. In the third section, which is about के फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि जेंडर स्टडीज क्या है या व्हाट इज द डिबेट ऑफ द जेंडर, ठीक है। सो व्हाट यू कैन से एक जनरल टॉपिक का डिस्कस कर लेते हैं कि जेंडर क्या है और सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट इज सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। सो बीइंग जेंडर in a gender studies or in social terms, you can say gender is a social constructed based identity. So this debate is about gender is a social construction, but on the other side, when you think gender also based on biological differences, okay, it also belongs to the biological difference. So one thing is social construction, these are the biological differences. But whenever you say gender is a social construction and have biological differences, and in society, as we have discussed, there are certain institutions. There are mainly 5 institutions. There are 5 institutions of society that give the social construction of gender. वो कौन-कौन से हैं? सबसे पहले है that is family, then is community, that is third is media, fourth is religion, and last one is the education. One is family, second is community, third is media, fourth is religion, and fifth is the education. So these are the 5 institutions of society, right, which makes the social construction of gender. But when we say there are biological differences as well, so what does it mean? Biological differences, there is a cognition. You can say cognitive development of a person or cognitive development of the gender. Cognitive development है, and there is a limbic system as well. ठीक है, cognitive development कहाँ से आती है? So this cognitive development belongs to your family system, you can say. कि family के अंदर there are certain types of the roles, there are certain types of the assigned gender roles that are being assigned to being a man and being a woman. तो वो gender roles जो हैं वो that develop the cognitive development of the gender and that gives the identity of a person being a man and woman. So cognitive development, this is the
this is also belongs to the biological difference and the social construction as well, because family is the institution that is the basic unit of the society, and basic unit उससे जो है वो दोनों social construction भी होती है and then the cognitive development as well. And the second thing that is, because we are saying gender is not a science, it's an arts as well. ठीक है, अगर आप कहेंगे आर्ट्स कैसे है जेंडर जो है, तो आप कहेंगे देयर आर सर्टेन बायोलॉजिकल है वो न्यूरॉन सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम इन द बॉडी दैट कंट्रोल्स द femininity and masculinity of the person. So that limbic system gives a response in a such a way that makes the identity or characteristics of a person being a feminine and masculine. Being a feminine and masculine. Okay? So being feminine and masculine, these are the different certain set of characteristics or certain personality traits that gives the gender identity of a person, gender orientation of a person. Of course, अच्छा, जब आप कहते हैं कि gender में this, okay, being gender roles, certain roles are assigned to men and certain roles are assigned to women. So this is gender. No, this is not only about the genders. There, in this subject, in gender studies, we will also talk about the transgenders. Okay. You will also talk about the what are the transgenders, because transgenders are being biological. They have certain biological differences that they are being born with that, and but they are part of the society. So being having those people being a part of the society, so we are talking about the social issues as well that are being contributed for the gender studies as well, and that is about the transgenders. So अच्छा, जब भी gender debate होगी, either in terms of developmental sector, either in terms of social, in terms of empowerment sector, तो mainly 3 areas हैं जो कि आपने हर जो है वो उसको reflect करना है gender perspective से. वो 3 areas कौन-कौन से हो सकते हैं? One is social. One is social, other one is economic, and third one is the political. Okay, so mainly these are the 3 areas you are going to reflect in your perspective of being a gender studies students. अच्छा, social issues में तो आपको पता चल गया. For example, अगर कहो कि domestic violence, this could be a social issue. अच्छा, economic issue क्या हो सकते हैं? For the women or belongs to the gender as well. अच्छा, specifically अगर women की बात करेंगे economic, what is the economic contribution of the women? So economic contribution of the women is that women are doing jobs. Women are, but when you talk about what could be the issues in terms of economy for women, because in this context, women are being assigned to, are very less being assigned to the executive levels or entrepreneurship jobs, you can say. Those can be contribution of the money in terms of economy, in terms of the local economy, in terms of their money holding power, in terms of their status within the family, in terms of their social status, and ultimately those economy belongs to the national economy as well. तो औरतों के जो है इकोनॉमिकल इश्यूज ये हो सकते हैं. और इकोनॉमिकल इश्यूज क्या हो सकते हैं? अगर वो जॉब्स कर रही हैं और जॉब सर्टेन टाइम फ्रेम के साथ कर रही हैं, बट दे आर नॉट बीइंग एबल टू गेट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. So this could be belongs to, this issue will belong to economic issue. Okay. Third one is the political issue. So political issues क्या हो सकते हैं? So mainly, as you know that there is the concept of quota system is that in a political system there is a concept of quota system as well. Quota system ये नहीं है कि सिर्फ education sector में assign the quota system के इतने परसेंट जो है वो minorities जो है वो integrate करें education sector में. लेकिन political sector में भी जो है वो quota system है. वो quota system के बहुत सारी जो है वो, अगर आप women parliamentarian caucus देखें, अगर उसमें सिर्फ 17% women political participation है या 22% women political participation है in the National Assembly, तो but they are not able to they are just part of the quota system. The quota system just belongs to the
segregated quota system, but this is only descriptive quota system, but that is not functional type of quota system. What does it mean? अच्छा, औरतों के political issues ये हो सकते हैं, अच्छा उनको political participation में तो ले आए, but they are not able to work independently, but they are not able to make policies independently. They don't have their decision making powers. They have certain kind of institutional barriers. They have the patriarchal institutional issue. They have the power issue. They are being a certain type of issues that are being ingrained in the system. There are systematic flaws as well. That's why they are not able to handle the political concerns of the women in the for the ultimately to attain the sustainable developmental goals. तो जब भी आपने जेंडर पर्सपेक्टिव से बात करनी हो तो these are the three main areas that you must have a knowledge about this. कि सोशल इश्यूज क्या है, इकोनॉमिक क्या है, पॉलिटिकल क्या है. तो जो भी सारी जेंडर की डिबेट होगी वो मेनली इन इश्यूज से बिलोंग करेगी, जो भी अपने आप कोर्स कंटेंट में पढ़ेंगे. और अगर यही मेनली इन एरिया से डिफरेंट इश्यूज इधर मैन और वुमेन और ट्रांसजेंडर उन एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उसकी डिबेट इज ऑल अबाउट सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस ऑफ द जेंडर. So this is all about the gender studies concept. So आपको इस पर्सपेक्टिव से साइंटिफिक वे में जो है वो अपनी सोशल इश्यूज को रिफ्लेक्ट करना होगा इन योर क्वेश्चन, और यू विल स्टडी all on the basis of this debate. You will be able to reflect the issues of women and men as well. तो फिर ये नहीं आपको लगेगा कि जेंडर स्टडीज जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ जो है वो विमेन स्टडीज है, या सिर्फ ज्यादा जो है वो औरतों के इश्यूज पे बात की जाती है वहाँ पे, और औरतों के साथ साथ मर्दों के इश्यूज पे भी बात की जाती है. यहाँ जो अगर एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें दोनों मर्द और औरतें काम करें तो उनके इश्यूज को डिफरेंटली किस तरह डील किया जा सकता है. तो आपने अल्टीमेटली जो है वो ये डिबेट है. ओके, अच्छा, ये अगर आपने ये देख लिया कि जेंडर डिबेट इज अबाउट दिस, और एट द एंड आप कहें कि ओके इट्स नॉट, जो कि आप फिफ्थ पे और फोर्थ पे ऑफ फेमिनिज्म एंड दैट इज अबाउट जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर तो ये है, इट इज सोशल कंस्ट्रक्शन, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, बट देयर आर अदर फेमिनिस्टिक authors and scholars as well who says that this is not only social construction and biological difference. There are certain gender roles, and not only the gender roles but ultimately performativity of the gender roles. So this is gender performativity. So gender performativity, it belongs to the identity of the gender, either that person is man or woman and transgender. So this gender performativity का मतलब ये है कि one person who is performing certain type of roles for the longer term and repeating those roles again and again, that will ultimately give a gender identity to a person, and that is all about performativity. It's not social construction, it's not biological differences, it's only about the gender performativity. यानी कि एक टाइम के लिहाज से जो जो आप करते जाएंगे वही आपका जो है वो आपकी अल्टीमेटली आइडेंटिटी या ओरिएंटेशन होगी या सेक्सुअल ओरिएंटेशन होगी. So gender performativity, it's also a theory, it's also a concept. So gender performativity theory was जो है वो that was given by Judith Butler. Judith Butler is a फेमिनिस्टिक स्कॉलर, ठीक है, और उसने ये थ्योरी दी कि दिस इज नॉट ओनली द सोशल कंस्ट्रक्शन और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, दिस इज ऑल अबाउट द परफॉर्मेटिविटी. कि अच्छा जो भी काम जो भी पर्सन कर रहे हैं और बार बार उन्हीं रोल्स में कर रहा है तो वो अल्टीमेटली इसकी जो है वो परफॉर्मेटिविटी बन जाए. सो इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, बीइंग देयर आर सर्टेन इश्यूज. If we talk about three perspectives, social, economic and political perspective के जो है वो अगर हम कहें कि local context में women issues को क्यों इतना highlight किया जाता है, so you can say being a gender studies student, but you can say कि there are certain
types of power differences that exist in your culture, exist in society, that exist in terms of language as well, in terms of language labels as well, that makes the difference between two gender categories, either for men and women. So generally, and literature is also reflecting that this cultural society have a differences of power difference in the power relation in terms of men and women. So in this culture, men are being considered as the more dominant ones and the females are considered as the submissive ones. तो उस पावर डिस्ट्रीब्यूशन में जो ये इस तरह के इश्यूज हैं वो किसी भी कैटेगरी से हो सकते हैं, वो मेनली हाईलाइट होते हैं और मेनली हाईलाइट इसलिए होते हैं कि one of the gender category being a woman, she is facing more such kind of issues in terms of power relationship. तो वही जो है इसलिए सोशल कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा औरतों के इश्यूज को हाईलाइट किया जा सकता है, जो कि आपको लगता है कि हम ज्यादा जेंडर स्टडीज में सिर्फ women issues पे बात करते हैं, but culturally and contextually the thing that being having a difference in power relationship, तो उसकी वजह से ये this gender debate mainly goes towards the women's studies because we mainly consider the issues of women that are being contextual, not are being only just based on the perceptions. Acha, Muzaffar Abbas is saying genes. Yes, of course. No, we are not mainly highlighting the medical biology in this, but we are just highlighting the cognitive development. तो cognitive development में आप वो देखेंगे, फिर वही family system आता है, फिर वो roles आ जाती हैं, या difference brought up in difference of men and women को किस तरह होता है. So it mainly belongs to the cognitive and limbic system as well. तो जीन्स की हम इतनी इस तरह इसमें बात नहीं करेंगे कि जीन्स बिलोंग्स टू द मेडिकल कैटेगरी, ठीक है. तो आपने सिर्फ जहाँ पे इतनी सी आप इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि बायोलॉजिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड नेचर एंड नर्चर डिबेट. सो नेचर बीइंग नेचर, अगेन देयर आर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, एंड बीइंग नर्चर देयर कुड बी अ डिफरेंस ऑफ द सोशल कंस्ट्रक्शन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज वेल. So this is the, you can say, it's all about today's discussion. So any question would you like to ask, you can ask. आपने कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं उसमें, या आप टेस्ट कर. अच्छा, Muzaffar Abbas is saying, ma'am, I want to say that biologically genetic system also decided that nature of gender. Yes, we are saying that biological differences have contribution in gender studies, because when there is a debate about nature and nurture, okay, nature and nurture, okay. When you talk about nature, yes, it's all about biological. तो जब आप biological कहेंगे तो obviously उसमें वो genetical जो है वो सारी जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन या जेनेटिक कंस्ट्रक्शन और डीएनए कंस्ट्रक्शन बिल्कुल उसमें बायोलॉजिकल डिफरेंसेस में फॉलो करती है. लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जेंडर स्टडीज, यू आर नॉट गोइंग टू वेरी मच राइटिंग इन योर इवन योर पेपर कि अच्छा जीन्स क्या डिफरेंस हैं. आपको ये नहीं पूछेंगे कि जेनेटिकल डिफरेंसेस क्या है, आप उसको जो है वो बताएं. लेकिन हाँ, वो आप उसको पूछ सकते हैं कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंस क्या है, आप उसमें कॉग्निटिव और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जरूर लिख सकते हैं. Of course, obviously, then what's the point to ask this question? Of course, we are saying these are the biological differences. तो biological differences में बिल्कुल होगा, genes तो obviously biology में है ना. लेकिन आपको जेंडर स्टडीज के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आपको ये नहीं पूछेंगे कि आप जेनेटिकल डिफरेंसेस लिखो, आप डीएनए स्ट्रक्चर डिफाइन करो, आप हेलिकल्स बताओ, आप कितनी चेन्स हैं प्रोटीन्स की, हीमोग्लोबिन की कितनी चेन्स है, कितने एस हैं, कितने बीस हैं, आप वो लिखेंगे, राइट. Hormones are something else, genes are something else. Genes is your like construction of your body, like hormones. No. Hormones, it's a different thing. Genes are different thing.
Hormones are controlling your emotions, your puberty, your characteristics of femininity, characteristics of masculinity, puberty, adulthood, older age, like family planning. These are the issues belongs to the hormones, but these genes doesn't belongs to the in such a way कि आप उसको कहें कि नहीं सिर्फ जीन्स जो है वो हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं. ये मेडिकली भी दिस इज समथिंग लाइक वीक स्टेटमेंट यू कैन से जीन्स जो है वो हार्मोन्स को कंट्रोल करेंगे. हार्मोन बिलोंग्स टू योर ब्रेन, ठीक है, दैट इज लिम्बिक सिस्टम. So how many kind of hormones do you have, and how different level of hormones belongs to your different set of emotions and different set of responses such as fight and flight that belongs to something else. Okay, Sadakat is asking what about the objective section of the paper? Will you provide notes regarding this section? Yes, जब आप एक पूरे वीक में अपना एक पूरे वीक का एक कोर्स पढ़ लेंगे तो जब आपका प्रैक्टिस टेस्ट होगा उसमें एमसीक्यूज भी होंगे और एससीक्यूज भी होंगे, तो आपको वो दोनों जो है वो एक प्रैक्टिस टेस्ट में मिलेंगे. जी ठीक है. Wasim is asking, recommend any books for the MCQs portion. One book, like when you say that topics belongs to different things and these are the multi-dimensional, then how can you say that कि अच्छा एक ही किताब से आप सारे पढ़ लें और मैं आपको कह दूँ कि वो किताब बिल्कुल ठीक है और वो आप उसमें से ही आप क्वेश्चन देंगे? नहीं, क्योंकि डिफरेंट रीडिंग्स हैं और डिफरेंट सेट ऑफ टॉपिक्स हैं, तो आपको उस टॉपिक और उस रीडिंग में ही सही एमसीक्यू या एससीक्यूज आएंगे. ठीक है, ये नहीं होता कि आप, ये किसी भी एग्जाम में नहीं होता कि आप अपने एमसीक्यूज जो है वो याद करके चले जाएंगे. उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें. तो कॉन्सेप्ट जब क्लियर होंगे कि जब आप थॉरो रीडिंग करेंगे और यू नीड सम काइंड ऑफ कोचिंग एज वेल. It's my point of view, but you can do something on your part कि आप जो है अपना सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करें. और एमसीक्यूज हमेशा क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज का जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होता है, वो ना भी इस पेपर में, वो सब पेपर्स में ऐसा ही होता है. ये तो नहीं हो सकता ना कि आप एक बुक में से 100 एमसीक्यूज भी 500 एमसीक्यूज भी याद करके चले जाएं, तो उसमें से आपको लगेगा वो नहीं, अगर एज इट इज नहीं आया तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आपकी जो है वो ऑप्शन शफल हो जाए फिर आप क्या करेंगे? You need to have a concept about the topic and then you will be able to choose which is the best one option for this statement. और अगर आप कहें कि आपको नंबर अप टू द मार्क जो है वो कहाँ से लेने हैं, तो आपके जो है वो क्योंकि 20 जो है ऑलमोस्ट 80 जो है वो उसका नंबर का आपका सब्जेक्टिव है. ठीक है, तो आपको ज़्यादा नंबर सब्जेक्टिव से आएंगे और सब्जेक्टिव से तब आएंगे कि जब अपने क्वेश्चन को आप प्रॉपरली एड्रेस करेंगे और जो रीडर पूछ रहा है या जो वो एग्जामिनर पूछ रहा है आप उसको वैल्यूएबल कंटेंट लिख के दें. So then you will be able to come to see that you can get the up to mark, or you can attempt the question up to the mark and get the not only the pass or not but maximum marks. मैक्सिमम आप इस जो है ना वो इसी तरह आपको मिल सकते हैं. और आपके ज़्यादा नंबर, अगर आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन थे कि सब्जेक्ट इजी है और स्कोरिंग ज़्यादा आता है, और ये याद रखिए कि स्कोरिंग अगर आपको ज़्यादा करनी है आपको अपना कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना है और उसके बाद थ्योरेटिकली आपको क्वेश्चन टेक्निकल तरीके से हल करना होता है, तो फिर आपके सब्जेक्टिव से नंबर अच्छे बनते हैं. सिर्फ एमसीक्यूज से नंबर अच्छे नहीं बनते, और एमसीक्यूज भी आएंगे आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड आएंगे. ऐसे तो बहुत सारे इंटरनेट पे भी हैं कि आप कहीं से भी जो है वो पढ़ सकते हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं. Okay, so these almost 2, 3, 5 minutes you can ask more question and then we will I will try to address your questions. So if you have any question regarding this orientation of this topic, you can also ask.
I hope you will come to know that how you will go through your syllabus and how we can give you, we will try to give you best services for your this session. So, yeah, hoping to have you in my class. This is only the orientation. Oh yes, you will see what we are studying, how we will do things more in later on. Because when you will join the class, I'm encouraging you to just join the class and have clarity in your concepts, and that's it. You will be able to go through the your question in terms of MCQs and SCQs as well. So no more questions. Okay then. See you in the class if you are going to join. I hope you get something good, not all of this, but something you will be able, you get understanding what could be the gender studies for you being a CSS aspirant. Okay, thank you so much for your time and have patience. Enjoy your evening. See you in the class. Take care. Allah Hafiz.